गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इसमें एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर हम मेटल्स की बात करेंगे तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टिविटी होते हैं, और जब अच्छे कंडक्टिविटी होते हैं तो इनके बीच में एक एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि जो हमारा जो मिनिमाइज एनर्जी लेवल होता है उससे हमारा मेटल का एनर्जी लेवल बहुत हायर होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से अपना बैंड बनाते हैं और वेलेंस और कंडक्टिविटी के बीच में एक अपना जॉइनिंग कंडीशन डेवलप करते हैं। तो बैंड थ्योरी इसी बात पर चर्चित है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी बैंड थ्योरी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं तो ये कह रहा है कि ये सॉलिड हमारे पास कोई भी सॉलिड और contain enormous number of atoms packed closely together. Each atom when the isolate of a discrete set of electron energy level. और हमारे पास कोई भी एक पैकेट है एनर्जी का, कैसा, सॉलिड का, और उनका जो लेवल है हमारे पास वो है 1s 2s 2p 3s 3p up to dot dot. Imagine all n atoms are solid to isolated from the one to another. Then they would be have completely coinciding set of energy level. That is, each of energy level of the n atom system have n-fold degeneracies. यानी n-fold degeneration है, the electron feel the energy level in each atom independently as the atoms approach one another to form the solid. A continuously increasing interactions occur between them which cause of these level to split into n discrete level. In practice, however, n is very large, or this is the value of 10 की पावर 23 पर सेंटीमीटर क्यूब। एटम्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 10 की पावर 23 है। Therefore, the split energy level becomes so numerous and so close together that they form an almost continuous energy band. यही कारण है कि ये कंडक्टिव बैंड बनाते हैं। The amount of splitting is different for different energy level. In general, lower level are splitting less than the higher level to lowest level remaining almost unsplitted. ये कह रहा है the amount of splitting is different for different energy level. In general, the lower level are splitting less than the higher level. Higher level, the lowest level
remaining almost unsplitted. The reason is that the electron in lower level are the inner electron of atoms which are not significantly influenced by the presence of nearby atom. On other hand, the electron in higher level are the valence electron whose the wave function overlap axially. ये कह रहा है on the other hand, the electrons in higher level are the valence electron whose wave function overlap appreciably. तो उन्होंने अपनी बात में कहा कि जो हमारे पास जो एटम्स है ये अपना वाइब्रेशन करते हैं और एक अपना एक एनर्जी लेवल बनाते हैं, और इस एनर्जी लेवल में उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि अगर हम कोई भी एनर्जी लेवल बना रहे हैं किसके बीच, एटॉमिक डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में, ये और ये 3p पर है, ये 2s 3s पर है और ये 2p पर है, और दिस इज द एनर्जी लेवल अगर हम इनका मेंटेन करते हैं ये, तो ये 3.67 एंगस्ट्रॉम्स और ये एनर्जी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल है उसमें जो वैल्यू है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 3p6 और 3s1 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीज। The dashed line indicates the observed interaction separation in solid sodium. This is the 3s level is the first occupied level to be split into a band. Is the 2p level does not begin to the split until the interatomic distance becomes smaller than actually found in the solid sodium. This is the level of 1s and 2s do not split at the all. Now the energy band in a solid corresponding to the energy level in an atom and electrons in a solid can have only one energy that fall within these energy band. The variation energy band is solid may or may not be overlap depending upon the structures of the solid. If they do not overlap, then the intervals between them represent energies which the electron in the solid cannot have. These intervals are called forbidden band energy gap. However, the adjacent energy band in the solid overlap. So this is the next language. So be value of the, if they do not overlap, the intervals between them represent energy. ये कह रहा है then the interval between them represent
energies which the electron in the solid cannot have, these intervals are called forbidden band or energy gap. ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं. We can show this is the structures of our metals, so these are represented by the three materials are proper gap are distance between proper gap are in the forbidden band gap. Forbidden band gap but in the second is the name of integrations of the energy band. So we define this is the point of these. On the other hand, the electrons in higher level are the valence electrons. So with the intervals between them the represented energy which the electron in the solid cannot have, these intervals are called forbidden. यानी इनके बीच में जो गैप आ जाता है एनर्जी के बीच में, दिस इज द डिफरेंट ऑफ द मटेरियल. कोई भी मटेरियल है या हम सिमिलर मटेरियल की बात करते हैं, तो जब भी कोई भी मटेरियल्स होते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ
जब भी कनेक्टेड रहते हैं तो उनके बीच में एक एनर्जी गैप रहता है। और ये एनर्जी जो गैप है इसी को हम फॉरबिडन बैंड गैप कहते हैं। अब ये बैंड गैप हर मटेरियल का अपना अलग अलग होता है। अब जस्टिफाई हम किसी भी जिसकी डेंसिटी ज्यादा हायर होती है उसका जो ये फॉरबिडन गैप उतना ही लोएस्ट होता है और अच्छे कंडक्टिव होते हैं, और जिसका डेंसिटी लोअर होता है उनके बीच फॉरबिडन गैप होता है। दिस इज द सिमिलर मटेरियल। इस सिमिलर मटेरियल के लिए भी डिफाइन है कि हम कोई भी कंटेंट मटेरियल लेते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से वो क्लोजली बाउंडेड है, लेकिन हमें दिखाई देता है। अब जैसे जस्टिफाई हम मान लें कि ये हमारे पास एक पेंट है, इस पॉइंट को हम देख रहे हैं तो इस पेंट में हमें लग रहा है कि ये सारे पार्टिकल्स एक साथ इस पर लगे हुए हैं, लेकिन अगर स्कैटरिंग से अगर हम देखते हैं इसको तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़ने के बाद भी अगर हमने इसको प्लेट को कंडक्टिव किया तो अगर इसकी डेंसिटी अच्छी है तो ये कंडक्टिव से यहां से चार्ज यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, और अगर वो प्रॉपर गैप है इनके बीच में तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करेगा। तो यानी कि फॉरबिडन गैप किसी भी मटेरियल के साथ हो सकता है, दिस इज डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डेंसिटी। तो ये बात हम जान सकते हैं किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो डी ब्लॉक वाले जितने एलिमेंट हैं वो सब कंडक्टिव होते हैं मोस्टली, और अगर हम पी ब्लॉक की बात तो पी ब्लॉक हमारे पास कंडक्टिव भी होता है, कुछ नॉन कंडक्टिंग होता है, कुछ सेमी कंडक्टर भी होता है। तो सेमी कंडक्टर मैंने आप बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फॉरबिडन गैप इनका डिक्रीज कर जाएगा। भाई दिस इज द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो एनर्जी लेवल बढ़ने से इनके बीच की जो फॉरबिडन गैप की जो प्रोसेसिंग है वो पुअर हो जाती है, और जब वो कम हो जाती है तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंडक्टिव बैंड हमारे पास हो गए, और उसको हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। भाई ये हमारे पास 3 मटेरियल्स होते हैं। भाई क्लासिफिकेशन अगर डेवलप करते हैं किसी भी बैंड गैप का तो ये हमारे पास ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम ये जान सकते हैं ये हमारे पास मेटल है या इंसुलेटर है या हमारे पास वो सेमीकंडक्टर है। अब इसकी थोड़ी थ्योरी आगे हम लेते हैं। तो आगे क्लासिफिकेशन का ड्राइव करता है तो उसको हम देखें। अब नेक्स्ट अब हम इसके आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ solid on the basis of band structure। तो ये कह रहा है दी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर and the way is the energy band are occupied by the electrons. In general, each energy band has a total of n individual level, and each level hold in 2 into 12 plus 1 electrons. The capacity of each band, each band is 2L plus 1 into N. Thus 1S, 2S, 2P, 3S band can hold 2N, 6N,
2n up to dot dot electron represently. Electrons respectively depending on the nature band occupation of the electron wide of the formation band are called as a classification of, ये कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बैंड, नेचर ऑफ बैंड ऑक्यूपेशन occupations by electron and on the width of forbidden band, all solid can be classified as conductors, insulators and semiconductor. अब ये तीन मटेरियल में डिवीजन हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और हमने फॉरबिडन गैप एनर्जी लेवल को बैंड एनर्जी थ्योरी सॉलिड में हमने देखा। तो हम किसी भी मेटल की प्रॉपर स्टेशन को लेके आए तो एनर्जी बैंड से लेकर उसका क्लासिफिकेशन जब भी डिवीजन किया, तो क्लासिफिकेशन डिवीजन जब करते हैं तो हम देखते हैं कि ये मटेरियल हमारे तीन कंडीशन में ब्रेक होता है, एक कंडक्टर में, एक इंसुलेटर में और एक सेमीकंडक्टर में। ये इसका इनिशियल स्टेट है इस थ्योरी का, और तरीके से समझिए, समझ में आएगा सब। अब इसमें हमारे पास आता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इन सम सॉलिड्स देयर इज ए पार्शियली फील्ड बैंड अबव द कंप्लीटली फील्ड लोअर बैंड सच एज ए बैंड इज फॉर्मेड फ्रॉम partially filled atomic level as in a case of alkali metals like in the sodium. A sodium atom has a single valence electron in outer 3s level. तो इसने कहा कि अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं या हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के लास्ट टोटल एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 11 होता है हमारे पास। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में बताया कि हमारे पास जस्टिफाई सोडियम है, और सोडियम ये तो हम जानते हैं कि 1s ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं सभी हमारे पास कैसे हैं? ये सभी हमारे पास कंडक्टिव मटेरियल हैं। और जब कंडक्टिव मटेरियल है तो जब भी हम इनको प्रॉपर गैप में रखेंगे तो प्रॉपर गैप में जब भी आएंगे तो ये अपनी कंडीशन को फॉलो कराएंगे। तो देखिए हमारे पास ये एनर्जी लेवल जाता है तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एक रिलेशन बनाता है। भाई हमने इसको स्ट्रक्चर को बेंड किया तो ये हमारे पास कितना ब्रेक हो गया? 2, 8 और 1 के साथ, 2, 8, 1 के साथ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आता है? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और ये 2p6, और इसके बाद हो गया आपका 3s1 के साथ। अब देखिए हमारे पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट फीड है, ये हमारे पास कंप्लीट फीड है। और जब कंप्लीट फीड है तो आप इसमें एक चीज देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास जो ऑक्टेट आता है तो ये इनकम्प्लीट रह गया, और जब इनकम्प्लीट रह गया इसका मतलब इसकी जो ऑक्टेट कैपेसिटी लेवल 2 थी और हमने इसको देखा कि तो इसमें आधा ये कंडक्टिव हो गया और आधा ये, तो इसमें दो कंडीशन आ गई है, कंडक्शन और एक वैलेंस बैंड।
तो वैलेंस बैंड ऊपर वाला हो गया भाई, ये हमारे पास कैसा हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इनके बीच जो प्रॉपर एनर्जी गैप लेवल है, ये कितनी है, ये E लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जो एनर्जी गैप है वो 3 से बहुत कम है, तो ये इनके बीच में जो लेवल बना वो 3s लेवल का बन गया। अब उसी तरह से हमारे पास दूसरा है बेरिलियम। अब बेरिलियम में हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेट कितना रहता है, कंप्लीट ऑक्टेट हमारा रहता है, इसमें बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। बेरियम का 4 हो गया तो कितना हो गया, 2 और 2, तो ये 1s² और 2s²। और अगर हम 2p को देख रहे हैं तो ये आपका 0 हो गया। 2p हमारा जो है, तो इसमें जो हमारे पास जो एनर्जी बैंड गैप है ये कंप्लीट फीड हो गया। तो हमने इसको p के साथ अगर जोड़ा तो ये 2s को अगर p को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हमने इस एनर्जी लेवल को लिया और ये हमारे पास कितना हो गया, ये 2s का हो गया भाई। 2s में हमारे पास फीड कंप्लीट है, ये हमारे पास, और ये ऊपर वाला जो है ये हमारे पास कितना है, ये 2p में, तो इनके बीच में ये वैलेंस आ गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। ये कंडक्शन बैंड हो गया, तो ये हमने ये देखा कि जो भी हमारे पास मटेरियल है वो ड्यू टू हमारे किस पर डिपेंड कर रहा है, वो आउटर क्लास में डिपेंड कर रहा है। तो यहां हमारे पास पार्शियली फील्ड बैंड मे ऑल्सो बी रिजल्टेड ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ ए कंप्लीटली फील्ड बैंड, empty band as in the case of alkalines earth metal, or so in the energy band of beryllium, empty 2 bands with the upper energy level of complete 2s band, those electrons which would be occupied in the highest energy level in 2s band will be actually go into the lowest of the overlapping 2p band. Thus the level at the top of the 2s band becomes, and the band is only partially filled. Now suppose an electrical field applied across a piece of the sodium or beryllium. These electrons in the partially filled valence band easily acquire additional energy to move the higher occupied energy level with the same band without crossing energy gap. The additional energy is in the form of kinetic energy, and moving electron constitute an electronic current. Sodium is therefore is a good conductor of electricity. Thus a partially filled valence energy band is a feather of conductor. तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी के लेवल में अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड के अंदर ये बहुत फास्ट होते हैं और बहुत स्ट्रांगली होते हैं, इसलिए ये हमारे पास फीचर ऑफ द कंडक्टर में कन्वर्ट रहते हैं, इसलिए हम इसको कंडक्टर बैंड भी